Hello, welcome to the series of lectures Physics. We are discussing the topic rest and motion. कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छी पढ़ाई चल रही है? अच्छी चलनी भी चाहिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इक्वेशंस ऑफ मोशन को, जिसमें हम लोगों ने कांस्टेंट एक्सीलरेशन के कंडीशंस में, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव किए थे। एक्चुअली 3 इक्वेशंस हम लोग लाए थे, और वो किस तरीके से था तो हम लोग देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन of motion with constant acceleration. Equation of motion with constant acceleration means A जो है वह constant है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन वाज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन वाज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड द थर्ड इक्वेशन वाज v square means v dot v equals to u square plus 2 into a s। तो इस 3 इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, ये क्या थे इक्वेशंस? these 3 इक्वेशंस, v equals to u plus at, s equal to ut plus half at square, और v square means v dot v equals to u square plus 2as. So now we can see that all these equations are written in vector form, because velocity is a vector quantity, acceleration is a vector quantity. So these equations have been written in vector form. You all have to use these equations in vector form, but in case of one-dimensional motion, if we are talking about this equation is generalized equation for motion with constant acceleration. These are generalized equation. This is not only related to a straight line. This is generalized equations. Generalized equation means I can write generalized equation of motion. तो now यदि आप देखिए, if motion is one dimensional or a straight line motion, a straight line motion, तो यदि हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करेंगे तो डेफिनेटली अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, देयर आर ओनली 2 possibilities. There are only 2 possibilities. Either it is in positive direction and just opposite direction. There are only 2 possibilities. So there, what we can do, in one direction we can take it as positive for reference. Suppose in this direction we have taken positive, then this direction is negative. So here in one dimension we can remove the sign of vector, because we have already got the direction. There are possibility of only 2 directions. If expressions are not written in vector form, in one dimensional motion we can write it v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, and v square equals to u square plus 2s.
we can write it. If it is going in positive direction, we shall put the value of V, U and A as positive, and in reverse direction we shall take it as negative. In the same way, suppose in vertical direction, अगर vertically upward एक डायरेक्शन है और एक डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है. अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो इस डायरेक्शन में चीज़ों को पॉजिटिव लिखेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे. तो यदि किसी भी पार्टिकल को हम u वेलोसिटी दे करके ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो वहाँ पे हम उसकी पॉजिटिव लेंगे, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात होगी, जब नीचे के डायरेक्शन की बात होगी, तब उसी वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे. ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं चीज़ों को कि क्या आता है. अब हम आपको बताते हैं कि कुछ कंडीशंस, फॉर एग्जांपल एक दो सवाल आप लिखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन किस तरीके से यूज़ होते हैं. तो मैं इस इक्वेशन को ज़रा साइड में नोट करवा देता हूँ आपको, फिर कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करते हैं. तो क्या था सवाल, इक्वेशन फटाफट हम लोग लिख लेते हैं. v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v डॉट v इक्वल्स टू u डॉट u प्लस 2 इंटू ए इंटू एस. इस इक्वेशंस को हम लोग रखते हैं, इसी की इक्वेशन को यूज़ करना है मुझे. अब देखिए, यदि कोई सवाल आपसे पूछा जाता है कि ए पार्टिकल, अगर इस क्वेश्चंस को हम लोग देखें कि इफ ए पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 2i प्लस 3j and having the acceleration 4i plus 2j. Find velocity and displacement in time t second. What is given? We have been given the initial velocity of the particle and acceleration, that is constant 4i plus 2j. It simply we can see that the acceleration is constant. Acceleration तो चेंज करेगा नहीं. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 4i 4 कांस्टेंट और 2j 2 कांस्टेंट, तो 4 और 2 कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है. तो जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो आराम से हम इस इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं. अगर इसको यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखिए v इक्वल्स टू, अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करें, v इक्वल्स टू u. व्हाट इज u? 2i प्लस 3j. टाइम t आप ले सकते हैं 2 सेकेंड. सपोज करते हैं कि 2 सेकेंड पर हमसे बात करना, कोई दिक्कत नहीं है. u प्लस a, व्हाट इज a? 4i प्लस 2j. vu प्लस a इंटू टी, तो t मीन्स 2, तो दैट इज v इक्वल्स टू 2i प्लस 3j plus 8i plus 4j, and now we can see that v equals to 2i plus 8i 10i plus 3i plus 4i is 4j 7j. It is the velocity meter per second. Meter per second. So what is the magnitude of v? Magnitude of v equals to, what is this? Mod v means speed. What is v?
एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे का क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो 100 प्लस 49 इक्वल टू 149 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? 149 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मीन्स स्पीड जो है, और किस डायरेक्शन में है? तो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 7/10, 10 इनवर्स y बाई एक्स। इसी तरीके से अगर हमसे s पूछा जाए तो s क्या होता है भाई? ut, u2i प्लस 3j n/2 प्लस हाफ a मीन्स 4i प्लस 2j t स्क्वायर मीन्स 4, 2 again it is 2, so what is this? 4i plus 6j plus 8i 4j, what is this? 12i plus 10j. Yes, this is the equation for displacement. So magnitude, if we want to find magnitude s, what is this? Under root x square, 12 12 144 plus 100 under root 244 meter. So the velocity is under root 149 meter per second, having the speed at an angle of this and displacement at an angle of theta equals to 10 inverse 10/12 at this angle. So here we can see that the velocity and the acceleration and the displacement all are not unidirectional, they have some different direction, सबका डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए इसका 10 इनवर्स 10/12 है, तो इस तरीके से आप वेक्टर इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रॉब्लम्स को देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम और देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों कि किस तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म में यूज़ करते हैं। एक सवाल आप लोग नोट कर सकते हैं या मैं नोट करवा भी सकता हूँ कि वो क्या है। इसी इक्वेशन को यूज़ करना है। कैसे करना है? क्वेश्चन है कि इफ अ particle is given an initial velocity u perpendicular to a means acceleration, find velocity and displacement at time t second. क्या कर रहा है? इस सवाल में कहा जा रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल को दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। मीन्स यदि इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में होगा कहीं ना कहीं। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो क्या सोचेंगे? तो जरा से इसकी सॉल्यूशन पे देखते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये अगर अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इस डायरेक्शन में यू दिया गया और इस अपवर्ड डायरेक्शन में ए दिया गया, हो सकता है या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ए निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है क्योंकि परपेंडिकुलर है और यू है पॉसिबिलिटी। अभी हम मान लेते हैं कि यू भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और ए जो है वो पॉजिटिव
y डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली u एंड a बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज 90 डिग्री। ये तो जानते हैं हम लोग। तो अब अगर हम u को लिखेंगे तो u को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ui और a j, तब ये वेक्टर फॉर्म में होगा। तो अगर वेलोसिटी मुझे निकालना है तो v इक्वल्स टू u मीन्स ui, x डायरेक्शन में है, प्लस at a j into t। तो what this equation will look like, v equals to ui plus a into t j। तो what is magnitude of v? Under root x square means u square plus at का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, दो वेक्टर है, आपको पता है कि अगर z इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे होता है तो मॉड ऑफ z मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ z कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उस कंडीशन में हम लोगों का मैग्नीट्यूड क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई, वाई मीन्स 80 बाई एक्स यू। अब यहाँ से ए टी और यू का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा और मैग्नीट्यूड भी बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया इसका, फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट किए। अब क्या बोलता है डिस्प्लेसमेंट, तो एस इक्वल टू यू टी, यू किधर है, आई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ए का डायरेक्शन क्या है बच्चों, तो ए का डायरेक्शन है जे। तो अब एस का मैग्नीट्यूड यदि हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे यू टी का स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो u और t का वैल्यू आप पुट कीजिए, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ था उसका वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर यहाँ से इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स हाफ ए टी स्क्वायर बाई यू टी, एक टी टी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हाफ ए टी बाई यू। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म में, अभी तक हम लोग उस ढंग से इक्वेशन को यूज नहीं किए हैं कि पार्टिकल इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट दिस टाइम, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट दिस टाइम। नो, वी हैव जनरली यूज दिस इक्वेशन इन टोटली वेक्टर फॉर्म। What we have done? We have used the equation in vector form. So अगर equations का जो इनपुट है, जो क्वेश्चंस का इनपुट है वो यदि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको इस इक्वेशन को क्या यूज करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में ही यूज करना पड़ेगा। राइट राइट फाइन। तो नाउ सी सम ये तो बेसिक्स थे। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट किस तरीके से काम करेंगे। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या सब है कि जब किसी भी पार्टिकल में कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया जाएगा, पहला तो ये होगा कि इनिशियल वेलोसिटी होगा ही नहीं, मीन्स पार्टिकल विल स्टार्ट इट मोशन फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल विल स्टार्ट इट मोशन फ्रॉम रेस्ट। तो जब कोई भी पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा तो नहीं घटेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, उसका इंक्रीज ही करेगा। तो पार्टिकल क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा। उसमें से वी हैव 3 कंडीशंस। फर्स्ट सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी मैं हटा देता हूँ अब यहाँ से।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, u equals to 0. What is the meaning of u equals to 0? u equals to 0 means particle starts from rest and it will accelerate, means u equals to 0 है तो फर्दर एट एनी टाइम t a जो है वह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ए क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि जब भी कोई रेस्ट से स्टार्ट लेगा तो रेस्ट से स्टार्ट लेने के बाद उस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज ही करेगी। स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज। अगर स्ट्रेट लाइन पे हम बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड बोल सकते हैं कुछ देर के लिए हम लोग, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स्ड है। तो इंक्रीज जब वो करेगी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव ही होगा। दूसरा कि u पैरेलल टू a, u पैरेलल टू a, u पैरेलल टू a का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में दिया गया जिस डायरेक्शन में क्या है, एक्सीलरेशन है। मतलब एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वह क्या है, सेम है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेट्स मीन्स ए जो है वह क्या है, ए पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। ठीक है, ये भी एक आसान कॉन्सेप्ट है। आप पहले ही देख लो कि u और a जो है वो पैरेलल है कि नहीं। अगर u और a पैरेलल है तो पार्टिकल क्या करेगी, एक्सीलरेट, उसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड कंडीशन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है कि u एंटी पैरेलल टू a, मीन्स u और a जो है वह एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। जस्ट मीन लाइट, u एंड a जो है वह एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन में होगा कि फर्स्ट पार्टिकल विल डी एक्सीलरेट और रिटार्डेट, जो भी बोलना है, टिल वेलोसिटी becomes 0, then accelerate in opposite direction। इस पॉइंट को समझना पड़ेगा, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा क्या कि यदि u और a एंटी पैरेलल है, मतलब अपोजिट है एक दूसरे के। एंटी पैरेलल मीन्स अपोजिट। एक स्ट्रेट लाइन मोशन की जब हम बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मोशन पे दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है किसी भी कंडीशन में। तो यदि u और a एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, तो जब एक दूसरे के अपोजिट होगा तो फर्स्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करते करते किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और जब 0 हो जाएगी तो फिर से वह उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहले था उस डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि यदि सपोज कीजिए किसी भी पार्टिकल को आप ऊपर फेंकते हैं, ऊपर थ्रो करते हैं, तो u किधर होता है जी, अपवर्ड डायरेक्शन में, और a किधर होता है, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में। g जिसको बोलते हैं, ये ना g होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो u और a क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब हम किसी भी पार्टिकल को यहां से थ्रो करते हैं तो क्या होता है,
पार्टिकल पहले जाते जाते उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करते चली जाती है। वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और इस पोजीशन पे क्या होगा इसकी वेलोसिटी आकर के 0 0। और फिर उसके बाद इस वेलोसिटी नीचे की तरफ आती है और भी क्या होती है उसकी इंक्रीज करती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। पहले किधर जा रहा था, ऊपर की तरफ, और अब क्या आ रहा है, नीचे की तरफ। इस तरह के बहुत सारे मोशंस हैं। जैसे किसी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींच करके क्या करते हो, छोड़ देते हो, उसका भी मोशन कुछ इस तरीके से है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के क्लास में, जब स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रिंग का डिफरेंट इक्वेशंस को लिखेंगे, तो उस समय एसएचएम की बात करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग ये करेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा कि पार्टिकल डी एक्सीलरेट करेगा। डी एक्सीलरेट करने का मतलब क्या कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वह इंक्रीज करेगा। फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से आपको मोशन के 3 कंडीशंस को देखने पड़ेंगे कि पार्टिकल स्टार्ट लिया है 0 से कि नहीं। अगर 0 से लेगा तो वो एक्सीलरेट ही करेगा और डी एक्सीलरेट नहीं करेगा। अगर 0 से नहीं लेकर के u और a पार्टिकल में दिया हुआ है और u और a जो है वह एक दूसरे की क्या पैरेलल है, तो पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा फर्दर किसी भी टाइम पे। लेकिन यदि u और a जो है वह एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, तो पार्टिकल फर्स्ट में क्या करेगा, डी एक्सीलरेट करेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी घटते जाएगी। कहाँ तक घटेगी, टिल इट्स वेलोसिटी बिकम 0, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती है। तो 0 जब होगी तो मोमेंटरीली या पार्टिकल रेस्ट पे जाएगा, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और वह वेलोसिटी जो इंक्रीज करेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। किस में करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। ठीक है, थैंक यू। इसको हम हटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। और अब कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कुछ डेरिवेशन की बात करते हैं। सॉरी, डेरिवेशन नहीं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, आप जानते हैं, उसके मीनिंग के बारे में आपको हम अभी कुछ डील करते हैं, समझाते हैं कि क्या है। जैसे अगर हम बात करें और आपसे कोई पूछे कि डी वी बाई डी टी का मॉड एंड डी वी का मॉड बाई डी टी, दोनों एक्सप्रेशन अलग अलग है। फर्स्ट तो देखेंगे आप कि डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी को क्या बोलते हैं जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन है ये। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। सॉरी, जस्ट ए मिनट, इट इज रनिंग हियर। और ये जो है डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज नॉट एक्सीलरेशन। तो व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। और व्हाट इज दिस, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब क्वेश्चन है कि दीज आर इक्वल टू ईच अदर, yes, in condition they are not equal to each other, they are different things. This is a vector quantity, this is magnitude of acceleration. Acceleration under mod is the magnitude of acceleration. Here velocity is only under mod, means it is speed, and d by dt is the rate, so it is rate of change of speed, not the acceleration. But in one dimensional motion, when particle is moving on a straight line, one dimensional motion, in one dimensional motion,
बोथ आर इक्वल। चूंकि क्या होगा कि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब हम वन डायमेंशनल मोशन में बोलते हैं तो डायरेक्शन तो उसकी फिक्स्ड है, तो हम स्पीड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वही चेंज करता है। तो दूसरा कंडीशन जो है कि dv बाई डी टी, जस्ट ए मिनट, dv बाई डी टी मॉड इक्वल्स टू dv बाई डी टी का मॉड, ये होगा दूसरा कंडीशन से। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसको समझना जरूरी है। इस कंडीशन से हो जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करें, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ये कंडीशन आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको रहने देते हैं। क्या ये मैग्नीट्यूड था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। अगर कोई भी आदमी आपसे पूछता है कि dv बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू 0 बट dv का मॉड बाई डी टी इक्वल्स टू 0, मीन्स ये पॉसिबल है कि नहीं, यह पॉसिबल है कि नहीं, जरा सोचिए कि dv बाई डी टी इक्वल टू 0 मीन्स एक्सीलरेशन इसमें है, एक्सीलरेशन 0 नहीं है, एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 मीन्स वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मीन्स 0 मीन्स स्पीड इक्वल्स टू कांस्टेंट। और स्पीड यदि कांस्टेंट, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वह क्या है, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, ठीक से समझिए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड बट द एक्सीलरेशन इज देयर मीन्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। इट डज मीन मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। Magnitude is constant, then what is changing? Direction. What is changing? Direction. So here the acceleration is only due to change in direction, not change in magnitude of the velocity. ये मत समझिए ऑलवेज कि जब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अभी 2 मीटर पर सेकेंड है, आगे जाकर के उसकी वेलोसिटी चेंज कर जाती है, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, तभी वह पार्टिकल में एक्सीलरेशन होगा। नहीं, पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन उस पार्टिकल में क्या है, अभी भी एक्सीलरेशन है। देखिए इस कंडीशन में कि dv बाई डी टी, v का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है, 0, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट होगा तभी उसमें चेंज 0 होगा, तो रेट ऑफ चेंज 0 है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, कांस्टेंट है, लेकिन उस पार्टिकल में एक्सीलरेशन है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज किया है। तो कैसे चेंज किया है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, तो चेंज क्या किया, डायरेक्शन। ये कंडीशन होता है, हम लोग आगे जाकर के डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि सपोज कीजिए कोई पार्टिकल 2 डायमेंशन में मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड हमने दे दिया, ये कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे क्या है, चेंज करता है, क्योंकि इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वह ऑलवेज टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। किसके अलॉन्ग होता है, टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। तो टेंजेंट तो हर एक पॉइंट पे चेंज करेगा, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट चेंज कर। जैसे आप सर्कुलर मोशन की ही आप बात कीजिए, एक सर्कल है, इस पार्टिकल को
इस सेंटर से अगर रोटेट करना है तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड हमने दे दी है। 5 मीटर पर सेकेंड से घूम सकता है। एक पार्टिकल सर्कल में 5 मीटर पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, तो उसकी स्पीड चेंज कर रही है क्या? नहीं, स्पीड चेंज नहीं कर रही है, लेकिन क्या चेंज कर रहा है? तो डायरेक्शन, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट के अलॉन्ग है और टेंजेंट हर एक पॉइंट पे चेंज करते जा रहा है। तो इस